Welcome student in our YouTube channel Discovery International School collaboration with the YCL, the brand of quality education. We provide the very good and fantastic facilities for the examination preparation of NEET and JEE. Students, subscribe our channel and push the bell icon for get the latest updates and latest videos regarding our examination. Okay, myself Sunit Kumar, botany faculty. In previous video we have discussed about the biomolecule. Which kind of biomolecule? Carbohydrate and lipid. In last video I have explained about the compound and derived type of lipid. Okay, compound and derived type of lipid. Today I would like to start about the protein. Okay, protein. So what do we mean about the protein? आप सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, हम कई बार इसका डिस्कशन भी करते हैं. तो आज मैं इसके बारे में थोड़ा सा कुछ डिटेल में कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा. आप सुनते रहें इस चीज़ को. प्रोटीन, अकॉर्डिंग टू बर्जलिस, प्रोटीन वर्ड अराइज फ्रॉम प्रोटीनियस, प्रोटियस, प्रोटियस. Proteus means holding first place, holding first place in our प्रोटोप्लाज्म. हमारे प्रोटोप्लाज्म में सबसे ज्यादा अमाउंट में पाए जाने वाले इन अवर प्रोटोप्लाज्म. वाटर के बाद, आफ्टर वाटर, द टॉप मोस्ट अमाउंट ऑफ बायोमोलिक्यूल नोन एज प्रोटीन. यानी कि वाटर की जो अमाउंट होती है वो नॉर्मली कितनी होती है आपको बताई हुई है, 70% to 90%. और इसके बाद सेकंड नंबर किसका आता है? प्रोटीन का आता है. तो हम यूं कहेंगे कि जो प्रोटीन है उनकी परसेंटेज अमाउंट होती है 5 to 15%. ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड. दैट मीन द ऑर्गेनिक कंपाउंड और बायोमोलिक्यूल विच फाउंड in highest percentage amount into protoplasm known as protein. Okay, simple thing. जब इसकी सबसे ज्यादा अमाउंट पाई जाती है तो हम ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि वर्किंग भी इसकी सबसे ज्यादा होगी. ओके, जब ये ज़्यादा परसेंटेज अमाउंट में पाई जाता है तो हम सिंपल सा कह सकते हैं इसके फंक्शंस भी ज़्यादा होंगे, इसके काम भी ज़्यादा होंगे. ओके, सो प्रोटीन्स आर हेट्रोपोलीमर्स. हेट्रोपोलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड. Heteropolymers of amino acid. That means in a protein molecule there are 20 type of amino acids are found, and these amino acids are different form. So due to presence of different form of amino acid, proteins are heteropolymers. That means non-presence of similar type of amino acid in an molecule of protein, okay, known as heteropolymers. And the polymerization occur by the help of some specific kind of bonds. First type of bond is known
peptide bond. Which kind of bond? Peptide bond. Second type, hydrogen bond. And third type, sulfide bond. Okay. सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, मोस्ट strongest bond. Second most strongest bond. And last. ओके, तो ये समझ लें आप. In the formation of protein molecule, there are three type of bonds found: peptide bond, hydrogen bond, and sulfide bond. Okay, so most important bond is peptide bond, and this type of bond found into between amino acids, because all type of protein molecules are made up of amino acid, and between amino acid presence of bond is known as peptide bond. Okay, so चले आगे. इसमें हम बात अब किसकी करेंगे? अब हम बात करेंगे अमाइनो एसिड की, बिकॉज ऑल प्रोटीन्स आर polymers of amino acids. So we should know first of all the structure and different type of function, different type of forms of protein amino acid. So amino acids. What do you mean amino acids? I would like to draw a simplest form of a typical amino acid. Typical amino acid, which is known alpha amino acid. यानी कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो अमीनो एसिड की होती है, जिसको एम्फोटेरिक अमीनो एसिड कहते हैं, उसकी मैं स्ट्रक्चर आप बना करके आपको दिखा रहा हूं. आप इससे समझ जाएंगे कि टाइपिकल अमीनो एसिड है, ऐसे ही सारे और होते हैं, उनमें थोड़ा बहुत फर्क होता है. जैसे इट इज अल्फा कार्बन, इसका जो सेंट्रल कार्बन है वो अल्फा कार्बन है. उसके साथ एक ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक, और एक ग्रुप होता है इधर एल्किल, और एक होता है एमीन ग्रुप. ओके, इट इज नोन amino group, and it is known carboxylic group. Okay, so there are two type of groups found into a typical form of amino acid, typical amino acid. One of them is known as amino group contain NH2, and second one is known as carboxylic group contains COOH. That means it is also known as acidic group. Carboxylic group also known as acidic group. Okay, so two just opposite type of group, the amino group help to create alkalinic nature. Alkalinic nature into any of amino acid, and carboxylic cause acidic nature into amino acid. Okay, so one of alkalinic group disturbed or neutralized by the presence of one एसिडिक ग्रुप. ओके, एक एसिडिक ग्रुप है और एक एल्कलाइनिक ग्रुप है, दोनों आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और अमीनो एसिड कैसी फॉर्म में चेंज हो जाता है? एम्फोटेरिक फॉर्म. दैट मीन नो एनी एल्कलाइनिक एंड नाइदर बेसिक, एल्कलाइनिक एंड एसिडिक.
No any one type of particular nature found in any typical form of amino acid. Okay, so we can say this is a simplest form of amino acid, amphoteric acid, amino acid. Okay, now अब हम इस पे थोड़ा सा ये भी कंसंट्रेशन करेंगे कि इसमें कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि अमाइनो एसिड को बनाने के काम में आते हैं. कौन कौन से होते हैं? कौन होते हैं. कौन, विच इज कौन, दैट मीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. देयर आर मोस्टली 4 kind of elements required for the production of any type of a molecule of amino acid, but additionally sulfur, most of कौन सा पाया जाता है? सल्फर, आयोडीन, आयरन may be found. Which kind of? Sulfur, iodine, iron may be found, can be found. Okay, so mainly 4 type of elements required for the production of amino acid. CHON, कौन? CHON. Okay, carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. Now when any type of amino acid found into aquatic solution and we supply electricity in this type of solution, then what will be the action of amino acid in this solution? इसकी हमें थोड़ी सी डिस्कशन कर लेनी चाहिए. When at isoelectric point, you do know isoelectric point, that means presence of equally positivity and negativity in a type of solution. This solution is known as isoelectric point or isoelectric solution. At this solution, which kind of effect can be occurred by any type of amino acid in this solution? So we can say this is the simplest form of amino acid. It can be found like this form, positive, maybe this form NH3 positive, because mostly 3 valency found with the nitrogen, but here there are 4 valency occur, 3 atom of hydrogen and bind with the central carbon. Okay, and this is COO with negative, and this is hydrogen, and this is alkyl group. Okay, it may be present generally in this form, NH2 carbon, COO negative, R and H. You can see here, you can see and understand this ion is positive ion, this ion is mainly negative ion. You can see here, this is positive ion and it is negative ion, but here you can see negativity and positivity, both type of ion presence in this type of ion, and both type of charged particles found in this type of ion. So like this ion of amino acid known as zwitterion. कौन सा आयन है? ज्विटराइन. देख सकते हैं आप यहाँ पर अमाइनो एसिड में पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है. ओके, बट यहाँ पर कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, यानी कि किसकी ओर जाए? एनोड की ओर जाए या फिर कैथोड की ओर जाए. सो देयर इज नो एनी टाइप ऑफ मूवमेंट फाउंड इन दिस टाइप ऑफ आयन, एंड दिस टाइप ऑफ आयन ऑफ अमीनो एसिड इज नोन एज ज्विटराइन. ZWITTER, ज्विटराइन. ओके,
So zwitterion form found into amino acid which has only one of amino group and one of carboxylic. Okay, so we can say neutralize or neutral form. Neutral form of amino acids are found into zwitter form or zwitterion form. Okay, now on the basis of rotation, kinds of amino acid. There are two type of amino acid found on the basis of rotation. You know, आपने कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले मैंने आपको ग्लूकोज के बारे में बताया था कि दो टाइप की उसमें रोटेशन पाई जाती है. एक कौन सी पाई जाती है? राइट हैंडेड. उसको क्या कहते हैं? मेरे हाथ से आप इस तरीके से समझे, क्योंकि मैं जस्ट आपके इनवर्स फॉर्म में खड़ा हूँ, तो हमारी जो साइड वो चेंज है. तो इस डायरेक्शन में होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेरी. एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन यदि किसी बायोमोलिक्यूल में होता है उसे कहते हैं लीवो रोटेरी. सो देर आर टू टाइप ऑफ amino acid found. D amino acid, that mean dextrorotary, and L amino acid, that mean levorotary. बिल्कुल सिंपल है. आपको कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेक्राइड में पढ़ाया हुआ वही चीज़ें हैं, इससे कोई अलग कोई पॉइंट नहीं है. और डेक्स्ट्रोरोटरी यानी कि राइट हैंडेड. Right handed, and this is left handed. Okay, right handed and left handed. Okay, तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेरी. डेक्स्ट्रो रोटेरी and it is known as लीवो रोटेरी. ओके, लीवो रोटेरी का मतलब क्या होता है? उल्टी तरफ, जस्ट एंटी क्लॉकवाइज, एंड इट इज फाउंड जस्ट क्लॉकवाइज. यू कैन राइट हियर, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टाइप ऑफ अमाइनो एसिड. अल्फा कार्बन कंटेन वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप. ओके, दिस कंटेन हियर it contain which kind of carboxylic group? Here R, here H. We can write amine group. यानी कि एमीन ग्रुप में रोटेशन क्या है? इसके क्लॉकवाइज रोटेशन है. इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेरी. क्या कहेंगे? डेक्स्ट्रो रोटेरी कहेंगे. और डेक्स्ट्रो रोटेरी है, उसका एग्जाम्पल है बेटा ग्लाइसिन. याद रखें, ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड. सबसे सिंपल टाइप का अमाइनो एसिड है अमाइनो एसिड किंगडम में. ओके, सबसे सिंपलेस्ट टाइप का. और किस फॉर्म में पाया जाता है? डेक्स्ट्रो रोटेरी. और ये किस में पाया जाता है? माइक्रोब्स, बैक्टीरिया. किस में होता है? बैक्टीरिया में. याद रखें, प्रोकैरियोट्स में डी टाइप ऑफ अमाइनो एसिड पाया जाता है प्रोटीन को बनाने के लिए. जैसे कि पेप्टाइड और ग्लाइकॉन, आप जानते हैं कि पार्शियली क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड से बना हुआ होता है, उसमें ग्लाइसिन मोस्टली पाया जाता है. बट लीवो रोटेरी कितने बच गए? आउट ऑफ 20 1 इज ग्लाइसिन एंड रिमेनिंग 19 अमाइनो एसिड्स आर एल फॉर्म. विच काइंड ऑफ फॉर्म? एल फॉर्म. Mostly found into eukaryotic living being. Okay, so two type of amino acid on the basis of rotation of a amino group. अब ये एमिनो ग्रुप इधर है, इसके राइट साइड में है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेरी. लेकिन यही एमिनो ग्रुप किधर हो? यहाँ पर हो.
तो इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, ये जस्ट इसके एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, जब इसको क्या कहेंगे, इट विल बी नोन एज एल्पोम और लीवो रोटरी. ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ असेंशियलिटी और नॉन असेंशियलिटी, यानी कि किसी भी लिविंग बीइंग में कितने अमाइनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है सो दैट दे कैन अटेन, दे कैन रिसीव दिस टाइप ऑफ अमाइनो एसिड फ्रॉम विद देयर फूड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्स, यानी कि एनिमल्स की बॉडी में कितने बन सकते हैं और कितने उन्हें बाहर से चाहिए, फूड सोर्स के साथ चाहिए. इस बेसिस पर इनको दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं. टाइप और काइंड्स ऑफ अमाइनो एसिड on the basis of essentiality, यानी कि इनकी जरूरत होती है तो किस तरीके से होती है, नहीं होती है तो किस तरीके से नहीं होती. टू टाइप, टू काइंड्स, कौन कौन से, ए essential amino acid and a नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड. तो हम पहले किसकी बात कर लें, एसेंशियल अमाइनो एसिड की. टोटल अमाइनो एसिड्स आर फाउंड 20 काइंड्स. 20 काइंड्स अमाइनो एसिड्स होते हैं, उनमें से 10 of them are known as essential and 10 of them known as non-essential अमाइनो एसिड. बिल्कुल सिंपल सी बात है, यानी कि 10 कैसे होते हैं, एसेंशियल, और 10 ऑफ देम नोन एज नॉन एसेंशियल. ये एनिमल्स की बॉडी की बात कर रहे हैं हम, हमारी बात कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग की, तो भी हम यही कैलकुलेशन करेंगे कि उनमें से 10 ऐसे हैं जिनको हम एसेंशियली हमें रिक्वायरमेंट होती है, एक्सटर्नल रिसोर्सेज से हम लेते हैं और लेना जरूरी भी है. अदरवाइज deficiency of these amino acid can be occur, and due to these deficiency of these amino acid, deficiency of proteinous molecule will occur in our body, and proteinosis disease, deficiency disease can be caused. Okay, ये कौन से हैं बेटा, टोटल 20 टाइप हैं जिनको बनाने के लिए, प्रोटीन को बनाने के लिए 20 टाइप के जो अमीनो एसिड हैं उनकी प्रेजेंस की जरूरी होती है, और उनमें से 10 ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में बन जाते हैं, सिंथेसाइज कर लेता है हमारा बॉडी सिस्टम. बट 10 उनमें से बाहर एक्सटर्नल रिसोर्सेज से लेने पड़ते हैं, उनको एसेंशियल कहते हैं. इनको हम किस तरीके से याद करें, टीबी मिल पाथ. ओके, क्या है इसका फॉर्मूला है बेटा, एक बहुत ही सिंपल और अच्छा फॉर्मूला है, ट्रिक है एक, टीबी मिल पाथ. यानी कि ये जो 10 एमिनो एसिड है उनके फर्स्ट लेटर से हमने एक ट्रिक बनाई है, टीबी मिल पाथ, T4, और इसके लिए क्या है, इसके लिए है गा 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 टूटे सिर तेरा और फूटे चेहरा तेरा, TSPC. ओके, गा गा गा. ओके, तो पहला हम डिस्कशन करेंगे इसका, एसेंशियल एमिनो एसिड. देयर आर 10 टाइप ऑफ एमिनो एसिड आर नोन एज एसेंशियल एंड 10 ऑफ आउट ऑफ 20 नोन एज नॉन एसेंशियल. ओके, तो एसेंशियल कौन से होते हैं, जो हमें बाहर से एक्सटर्नल रिसोर्सेज से हमें चाहिए, हमारे फूड
पार्ट्स या फूड कंपोनेंट्स भी बिल्कुल होने चाहिए, प्रेजेंस होने चाहिए, और नॉन एसेंशियल हम हमारी बॉडी में ही सिंथेसाइज कर लेते हैं. टी, फर्स्ट टी, दैट मीन थ्रियोनिन. थ्रियोनिन, V for valine, M for methionine, methionine, I for isoleucine. Okay. Next, isoleucine. First, leucine, and second lysine. बात आती है किसकी? PATH. ओके, PATH, T for threonine, V for valine, M for methionine, I for isoleucine. फर्स्ट L for leucine. यहाँ ल्यूसिन लिया तो यहाँ भी मैंने ल्यूसिन ले लिया. यहाँ पर आइसो के साथ ल्यूसिन है, यहाँ सिर्फ ल्यूसिन है. ओके, और यहाँ पर लाइसिन. देन P for फेनिल एलानिन. फेनिल alanine, and A for alanine, and T for tyrosine, and C for, ये आप देख सकते हैं लास्ट में है H for histidine. H for histidine. ये नाम तो हमें याद करने पड़ेंगे, ये सब नाम हमें याद करने पड़ेंगे, लेकिन इनको याद करने के बाद हमें 10 टाइप ऑफ एसेंशियल एंड 10 टाइप ऑफ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड को हम कैटेगराइज कर सकते हैं इस तरीके से. टीवी मिलपाथ. ओके, टीवी मिलपाथ, थ्रियोनिन, वेलिन, मेथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फेनिल एलानिन, एलानिन, tyrosine and histidine. Okay, the 10 of them are गा गा गा, नहीं तो टूटेगा सिर तेरा फूटेगा चेहरा तेरा. तीनों गा मैं पहले आपको बता देता हूं. फर्स्ट गा, दैट मीन G, ग्लाइसिन. कौन सा बेटा? फर्स्ट G, ग्लाइसिन. दूसरा ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एंड ग्लूटामाइन. एंड थर्ड G, ग्लूटामाइन. तो 3 G बेटे देख सकते हैं आप. 3 G, फर्स्ट ग्लाइसिन. ग्लाइसिन आपको मैंने बताया सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड. ग्लूटामिक एसिड, एसिडिक फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड, एंड ग्लूटामाइन. ओके, 3 G फिनिश हो गए. बच गए क्या आपके पास? फर्स्ट है, सेकेंड है, एंड थर्ड है. फर्स्ट है एस्पार्टिक एसिड. व्हाट इज एस्पार्टिक एसिड? नंबर 2 एस्पार्जिन, aspartic acid, aspargine, and सेकेंड, थर्ड ए. अभी आपको बताते हैं. नेक्स्ट एंड लास्ट TSPC. TSPC, दैट मीन ट्रिप्टोफान, ट्राइप्टोफान. S for serine,
P for proline and C for cysteine. ओके, तो कौन कौन से हो गए? ये हो गया बेटा आर्जिनिन. ओके, ये थोड़ा सा दिमाग से उतर गया था लेकिन मैंने अब आपको बता दिया है. 3G है, 3G फर्स्ट लेटर 3G. यू कैन राइट विद ईच अदर. G G G, गा गा गा. एक साथ ऐसे भी कर सकते हैं, गा गा गा. नहीं तो टूटेगा सिर तेरा, फूटेगा चेहरा तेरा. ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्जिन, arginine, tryptophan, serine, proline and cysteine. Okay, these are 20 type of amino acid categorized into two category. कौन सी कैटेगरी बेटा? एसेंशियल अमाइनो एसिड यानी नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड. एसेंशियल अमाइनो एसिड, द अमाइनो एसिड विच आर नॉन रिक्वायर्ड from external sources by or with our food material, because formation of these amino acid process occur in our metabolic process. हमारे metabolic process में ही ये ऑटोमेटिकली बन जाते हैं जो सिस्टम है हमारा, बट इनमें से 10 वो नहीं बन पाते और ये मैंने आपको अलग अलग बता दिए हैं. ओके, कौन से है? टीबी मिलपात, गा गा गा. नहीं तो टूटेगा सिर तेरा, फूटेगा चेहरा तेरा. ओके, सो मेनली अमाइनो एसिड के ये फॉर्म है. ठीक है, इनमें कुछ छोटी मोटी चीज़ें और रही हैं और प्रोटीन के जो टाइप हैं वो रहे हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. यदि सारे अभी कर लेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आईडी ज़्यादा हो जाएगी. सबसे कॉम्प्लेक्स से अमाइनो एसिड कौन सा है, सबसे सिंपलेस्ट कौन सा है, कौन से अमाइनो एसिड का और प्रोटीन सिंथेसिस के अलावा भी क्या कोई और काम है और कोई फंक्शन है, इन चीज़ों से रिलेटेड. और इसके साथ साथ एसिडिक फॉर्म कौन से होते हैं? 3 एसिडिक फॉर्म होते हैं, 2 एल्कलाइनिक फॉर्म होते हैं. तो ये जो कैटेगरी है, बाकी के बचे हुए 15 क्या होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं, जिनमें ना एसिडिक मीडियम होता और नेचर होता और ना ही उनका एल्कलाइनिक और बेसिक नेचर होता है. तो इन सब चीज़ों में हमें और थोड़ा सा वीडियो है बहुत बड़ा बन जाएगा, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसको इंक्लूड करेंगे और उसमें प्रोटीन की टाइप भी हो जाएगी. ओके, सो subscribe our YouTube channel and push the bell icon again. Try this process so that you can remain yourself updated with us. Okay, bye.